Bismillahirrahmanirrahim. Today, 14th January 2025, Gilgit-Baltistan, Muzakara, as ex-Minister of Provincial Gilgit-Baltistan, Hafizur Rahman, coming in NPC Islamabad, and they met the Muzakara. Let's go and see. اگر میں آپ کو روکوں تو آپ امید ہے آپ ناراض نہیں ہوگی کیونکہ وقت کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. تو شروع میں ہم 2 سے 3 منٹ کیونکہ جو سیاسی ایشو ہے وہی ہے. یہ جو جس تنظیم کے سائے میں ہمیں یہاں مدعو کیا گیا، اپنے مشکلات کو، اپنی فیوچر کے میں پیش آنے والے ایشوز پہ ہمیں اکٹھا کیا گیا، ہمیں بولنے کا موقع دیا گیا. میں انتہائی مشکور ہوں ذمہ داروں کا، اس تنظیم کا. اور اس کے بعد میں بحیثیت اسلامی تحریک کے GB کے ترجمان کے، کیونکہ ہمارے جو ایوب وزیر تھے وہ ناسازی طبیعت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. اسلام فاتح خیبر و خندق حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولادت آپ سب کو مبارک ہو. اور ان کے نہج البلاغہ جو یقیناً آپ سب کے سامنے اس میں فرماتے ہیں کہ اوضع العلم ما وقف علی اللسان واظہرہ ما ظہر علی الجوارح. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جناب علی ہوتے ہیں یا ہمارے پاکستان کی کھلاڑی اگر کہیں پہ جیتے تو وہاں پہ ہمارے آنسو ہوتے ہیں. اور دوسرے شہداء کی ایک ہمارے قبرستانیں سجی ہوئی ہیں پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہمیں تشخص نہیں ملے، اس کے باوجود بھی ہمیں جناب علی آئیڈینٹی نہیں ملے اور ہمیں مختلف لالی پاپ پہ رگڑا جائے، تو اس سے بڑی جو ہے محرومی سیاسی اور کیا ہو سکتی ہے. آج ہمیں سب کو مل کر اسی کے لیے کوشش کرنی ہے. اگر مجھے موقع دیا جاتا ہے، ٹائم ہے، تو میں صرف ایک فارمولہ میں نے، چونکہ مرکزی امام جمعہ بھی ہوں میں، چونکہ شہر میں انہیں سب ہم تجاویز کے اوپر آخر میں آئیں گے. This is the Fikr Social Forum Gilgit-Baltistan. They are expressing the problems of the Gilgit-Baltistan. سیاسی مسائل کے حل کے لیے اس میں جو مشکلات ہیں اس کے لیے سب اکٹھے ہو کے یہاں بیٹھے ہیں. تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آج کے دن کی مناسبت سے Remember, here the honorable guest is ex-Minister of Provincial Minister Hafizur Rahman, Muslim League Noor. اپنی کوئی پہچان ابھی تک ہمیں نہیں ملا، جس کے لیے جدوجہد ہمارے آبا و اجداد نے اس وقت جن کے ساتھ لڑ کے ہمیں اپنی آزادی ہم نے خود حاصل کی. اگر یہ ہمارے آبا و اجداد کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں 75 سال تک پوچھا نہیں جانا ہے، تو اس وقت یقیناً ہمارے آبا و اجداد یہ جدوجہد بھی نہیں کرتے. تو سب سے بڑی بات ہمیں اپنے آئینی حقوق کے بارے میں سب نے مل کے اس کے بارے میں عمل کرنا. باقی مسائل گلگت بلتستان کے آپ کس چیز میں مسائل نہیں ہیں، آپ کہاں آپ دیکھیں گے. جس چیز میں آپ کا پوٹینشیل تھا اس میں ابھی تک پچھلے سب سے پہلے تو تمام پارٹیوں کو اکٹھے کرنے کا آپ کا ادارے کا شکریہ. آپ نے ہم سب کو ایک ٹیبل میں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، اور وہ بھی ایک بہت بڑا ایجنڈے کے لیے. گلگت بلتستان کی 75 سالوں کی آئینی محرومی کو دور کرنے کے لیے ایک ایجنڈے پر ریکمنڈیشن دینے کے لیے آپ نے اکٹھے کیا. آپ کا بڑا شکریہ. مسائل تو اتنا ہے کہ وہ دن کے ختم نہیں ہو سکتے، لیکن سب سے پہلا ضرورت ہے ہمارا ایک قوم ہو کے کھڑے ہونے کا. جب تک ایک قوم نہیں ہوں گے تب تک 75 سال گزرے، مزید 75 گزریں گے، لیکن کوئی آئینی حقوق نہیں ملیں گے. لہذا سب سے پہلے ایک قوم ہو کے گلگت بلتستان کی مسئلے کو اپنا سمجھ کے ایک قوم ہو کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ کچھ چیزیں میڈیا کے سامنے نہیں کہنا بھی ہوتا ہے، لیکن نہیں کہہ کے بھی اصلاح نہیں ہوتا ہے. اصلاح کی بھی ضرورت ہے. ہم مختلف گروپوں میں بانٹے ہوئے لوگ ہیں اور ہم ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں. جب تک یہ استعمال ہونا بند نہیں ہوں گے تب تک یہ آئینی حقوق ہمیں نہیں ملیں گے. بہت سستے ریٹ پہ استعمال ہو رہے ہیں ہم، اور ہم میں سے زیادہ تر ہم دیور والے اس سے بھی زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور استعمال سارے ضلعوں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن
इसमें हमने इस्तेमाल होने से दूर रहना और सस्ते किराए पर इस्तेमाल नहीं होना। हाँ, मुल्क की बेहतर मुफाद के लिए हर शहरी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अपने इलाके की बेहतर मुफाद को भी मद्देनजर रख के इस्तेमाल होना। ये नहीं है कि अपने इलाके को तबाह बर्बाद करके और आप यूँ है इस्तेमाल हो जाए, ये कोई मुनासिब नहीं है, अमल नहीं। पूरा मुल्क में मिल रहा है, सिर्फ आयत के अंदर जहाँ जहाँ शिकू की सहूलियत की जरूरत है वो होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबको एक एजेंडे की तहत खड़ा होने की जरूरत है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि तमाम मजहबी जमातें हो, सियासी जमातें हो, समाजी लोग हो, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आज जिस तरह मुहैया किया है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी एक रिकमेंडेशन हो, इसका बड़ा असर होगा। President Afraz is a spokesperson of the government now. माहौल को जोड़ने के जो एफर्ट्स किए हैं मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जितने भी पैनलिस्ट हमारे जो रिस्पेक्टेड यहाँ पे लीडरशिप बैठी है, इन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। और मेरे सामने बैठे हुए तमाम साथी मीडिया, सोशल वर्कर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स गिलगित बल्तिस्तान के सबको मेरा सलाम। और ख़ासकर वो आवाज़ें जो हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के कलम और सदाकारी की सूरत में निकलती हैं, उनको भी मेरा सलाम। आज इस तरह मसाइल की बात करें, मसाइल पे ही बात करूँगा जो गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े मसले हैं। यहाँ पर जंग आज़ादी की बात है और आबा-ओ-अजदाद की जो आज़ादी की बात है। 47 से पहले मैं इंतहाई मुख्तसर 3 मिनट में कंक्लूड करना चाहता हूँ। 47 से पहले जो आज़ादी थी वो भी ग्लोबल रेलेवेंसी थी, एक ग्लोबल माहौल के नतीजे में इसलिए खित्ता आज़ाद हुआ और 47 में गिलगित हुआ, 48 में बल्तिस्तान हुआ और 52 में जाके दारुल जो गिलगिस्तानी इलाके थे वो भी इंतजामी तौर पर मर्जर हुआ। जो 3 जो इकाइयाँ मुख्तलिफ वक्तों में जम हो जाते हैं जिसको हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। एक ज़माने में नार्दर्न रियाज कहते थे, गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। वहाँ एक पोलिटिकल एवोल्यूशन आज का नहीं है, ये 47 के बाद एक सियासी सफ़र शुरू हुआ और साफ़ी सफ़र भी वहाँ एक इर्तिका के नतीजे में आया। और उस सफ़र को तय करते हुए हमारे बहुत सारे लोग दुनिया में नहीं हैं, चले गए जिनकी कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत में, आज़ादी सहाफ़त में और मुख्तलिफ ज़िंदगी के मैदानों में, क्योंकि सब में एक इर्तिका अमल चल रहा है। और ये जो असम्बली इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है, ये भी बहुत सारे इर्तिका के मराहल से गुजरते हुए यहाँ तक ये असम्बली है, उसके पीछे भी एफर्ट्स हैं। तो ये जो सियासी अमल है, क्योंकि 47 में जाके आप यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का नहीं, कश्मीरियों का नहीं, कश्मीर डिस्प्यूट का एक हिस्सा है, आप चाहें ना चाहें, माने ना माने, जिसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान आज भी चूँकि फुल फ्लैश रिप्रेजेंटेशन मरकज़ में नहीं है। ये गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का कसूर नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जंग लड़ी, आज़ादी हासिल की और उन्होंने एक नारा लगाया कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। और ये अनकंडीशनल और बाई चॉइस पाकिस्तानी हैं इस खत्ते के, इस मुल्क के अंदर, जिन्होंने बड़ी सेक्रीफाइसेस के बाद आज भी गिलगित बल्तिस्तान का जो ट्रू सेंटिमेंट है, पाकिस्तान का जो ट्रू सेपरेट है, वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। और वो जो डाइवर्स सोसाइटी है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए वहाँ पर ये है, एक डाइवर्स माहौल है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेक्टरियल, लिंग्विस्टिक, रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, उसको अनफॉर्चुनेटली आज तक हम प्रॉपर तरीके से अपॉर्चुनिटीज में बदलने। Spokesperson Kazim Hussain from Gilgit Baltistan, Social Forum Gilgit Baltistan. गिलगित बल्तिस्तान से मजमूआ यही रहा है कि हमारी कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट कभी भी किसी भी मौजू पर हमारी नहीं रही है। और ओवरऑल खास कर इन हालात में जब पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो तो ब्लैक पेन और एक दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाना ही हमारी कारकर्दगी साबित होती है। जिस माहौल में उस सफोकेशन में यकीनन पर हमें ये मानने की ज़रूरत है, पाकिस्तान में इन 77 सालों में हमारा सिस्टम यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर पाकिस्तान में इन 77 सालों में नहीं हुई है। और लेकिन इन 77 सालों में आपने देखा, हमने देखा कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सका। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 77 साल तारीख में पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम जब मैच्योर नहीं हुए हो और इम्पावर नहीं हुई हो, वहाँ जाकर गिलगित बल्तिस्तान जैसे माहौल में जहाँ पर आपने 2009 से तकरीबन आप प्रैक्टिस शुरू की है, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस आप जिसे कह सकते हैं, वो भी यकीनन अभी बलगत के मरहले पर ये असम्बली नहीं। एल्टीट्यूड पे, ग्लेशियर्स पे, जहाँ जहाँ आप नजर दौड़ाते हैं, हम दुनिया के रिचेस्ट रीजन है। और आज की दुनिया के अंदर हम जब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कंपेयर करते हैं तो वी आर टूरिस्ट लेवल के ऊपर हमारी इकोनॉमी है और हमारा रीजन बहुत ज्यादा
मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजयस एरिया में हम रहते हैं तो इसको मद्दे नजर रखना है। लामाला इसको भी देखें, आपकी तशक्कुस को भी देखें, आपकी मतलब आने वाली मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का भी आपस में डिस्कोर्स पे बैठने की जरूरत है ताकि हम जितना हम कंसेंसस कर सके इतना ही हम गिलगित बल्तिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। हाफिज रहमान 3 मिनट बोलने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं और must be known यकीनन ये एक अच्छी काविश है। हमारी सियासी जमात के तमाम की यहाँ रिप्रेजेंटेशन मौजूद है और इन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान के, क्योंकि आपने फर्स्ट 3 मिनट में ये कहा कि सियासी मसले में तो नंबर 1 पे यही आता है जो यहाँ जिक्र हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा स्टेटस है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के अंदर ये न होने से क्या मसाइल आ रहे, इसको हमें ज्यादा बहस करनी चाहिए कि चले अगले 20 साल भी नहीं होते, अगर इसी तरह हम डिवाइड रहते हैं अगले 20 साल में भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अगर 50 साल में भी नहीं, तो आपके पास एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए, एक खुशहाल गिलगित बल्तिस्तान बनाने के लिए आपका कौन सा हाथ है जिसने आपको रोका? इस पे बहस होनी चाहिए। स्टेटस जो है जीबी के अंदर, एक तो हम सब जैसे हमारे दोस्तों ने कहा, क्योंकि ये इलाका मसला कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आइसोलेशन में इसका कोई हल मुमकिन नहीं है। क्या कश्मीर के अपने 2 पार्ट्स को, जो राइट्स उस तरफ वाले पार्ट्स का तो मकबूजा कश्मीर है, वो तो एक कश्मीर पे डिस्प्यूट नहीं मानता। इस तरफ जो हम पाकिस्तान है जो कहता है कि पूरी रियासत है कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट है, हमारे उनके मौक़िफ़ में ये बड़ा फर्क है, वो इसको डिस्प्यूट ही नहीं मानते। हमारा मुद्दा यूनाइटेड नेशन में ये है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। अब हमें ये गौर करना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में जो स्टेटस है उसको देने में मसला कश्मीर तो रुकावट नहीं है, उसको देने में आइन तो रुकावट नहीं है, उसको आप तक पहुंचाने में जो है वो किस किस्म की कोई गवर्नेंस और उसमें आइन की तरमीम करने की जरूरत तो नहीं है। तो हम इस इशू को जब तक सियासी जमातें, जब कैमरा लगा हो तो सच्ची बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि हम सियासी जमातें, हमने वोट लेने, हमने पॉपुलर बातें करनी। ये वो इशूज हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि फेडरल वफाकी जमातें, वफाकी मजहबी सारी जमातों को बैठना चाहिए, एक मिनिमम मैक्सिमम चार्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमें इत्तेफाक करना चाहिए। अब इससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो यही है कि जैसे हमारे काजिम एहसन साहब ने फरमाया कि 2009 से पॉलिटिकल इर्तिका का ये सिलसिला शुरू हुआ। The central idea of this Muzakara GB Gilgit Baltistan is that how we solve the problem, and Gilgit Baltistan is also disputed area in United Nations or in Pakistan and India. So we have because he is and this area is with occupied Kashmir and Azad Kashmir.